Good afternoon, children. Okay, Visakha, good. You have completed exercise 10.1. Children, we have discussed exercise 10.1 in last class. Okay. In exercise 10.2, it is a map. You have seen the book at page number 163. Look at the given map of a city and you have to color the map as follows. There's a water by blue color, fire station by red color, and so on. Similarly, you have to draw a map of your classroom using proper scale and symbol for different objects. So you have made a classroom of any measurement and then symbol पे benches, table, teacher's table, blackboard, and so on. So I have not considered exercise 10.2 today. In exercise 10.3 is important for us, and in this exercise we have studied about Euler's formula and polyhedron. So firstly, I am discussing about the polyhedron. What is polyhedron? Poly and hedron. There are two words, poly and hedrons. In last class, I have discussed about the faces, vertex, and edge. Suppose this is the book, and this is the shape of a cuboid. This is a book, and the book is the shape of a cuboid. Okay. These first, second, third, fourth, 5, and 6. These are the faces. Each two faces are equal to each other. These two faces, and these two faces. And look at this point. Here two faces are meeting each other. One face, two face, and this is the edge. बोलचाल की भाषा में जैसे टेबल होती, चेयर होती, उसका जो साइड जिसको हम किनारा कहते हैं, दिस इज नोन एज इन द मैथ लैंग्वेज इज. एंड वेयर 1, 2, 3 edges are meet at this point. This is known as vertex. So first one is the faces, 6 faces in a cuboid, and where two faces meet each other, this is known as edge, and where 3 edges are meet, this point is known as vertex. हाँ, नहीं करनी, 4 भी कॉपी में नहीं करनी बेटा. एक्सरसाइज 10.2. तो there are 3 surfaces. These are known as faces, vertex and edges. पहले यहीं पर मैं यूलर्स फॉर्मूला बता देती हूँ कि इनका जो रिलेशन है इन तीनों के बीच में, F plus B is equal to E plus 2. This is Euler's formula. This is Euler's formula. Sometime you have seen in this form. This is also known as Euler's formula. आप किसी को भी यूज कर सकते हो. With the help of anyone, you can solve the problem. Okay? और तो ये बहुत easy है. इनमें से any 2 is given and you have to find out the third one. बट इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहती हूँ. मैं आपको पॉलीहेड्रॉन के बारे में समझाना चाहती हूँ. वो सारे सॉलिड्स जैसे मैंने भी एक क्यूबाइड का आपको एग्जांपल दिया, विच है फेसेस, एज एंड वर्टिसेस आर नोन एज पॉलीहेड्रॉन. ओके. सो ऑल द अभी आपके क्वेश्चंस जो आएंगे 10.3 के वो इनसे रिलेटेड आएंगे, इसलिए पहले मैं इसको समझा रही हूँ. ऑल सॉलिड फिगर्स विच हैव दीज 3 थिंग्स, फेसेस, एजेस and vertices are known as polyhedron,
and you also know that what is the faces, what is the vertices, and uh, what are the edges, है ना. अब आ जाओ. अब सपोज करो you have take the diagram of a sphere. This is a solid sphere. This is a solid sphere, okay. But you have seen in the this is circular, curved, or suppose you have take a cylindrical. Cylindrical means curved surfaces, okay. Is both are polyhedron? Yes or no? Give me reply. Give me reply in chat box. These two figures, solid figures, are polyhedron? Yes or no? ये कोई क्वेश्चन नहीं है दिवेश, मैं पढ़ा रही हूँ और आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये दोनों पॉलीहेड्रॉन है. यस और नो. ऋषभ यू आर राइट. ओनली ऋषभ. चार्वी आर राइट. These are not the polyhedron. वापस ध्यान से सुनो, मैंने भी क्या समझाया कि पॉलीहेड्रॉन वो होते हैं जिसमें एज हो, फेसेस हो और वर्टिसेस हो. अब जरा देखना इसमें कहाँ फेस है, बताना मुझे. इसका तो कर्व सरफेस है ना. देखो ये कर्व सरफेस है. फेस का मतलब समझते हो ना बेटा. देखो यहाँ पे आप लोग जैसे सपोज करो मैंने एक ये डायग्राम बनाई. मैं ये उस दिन मैं समझा के गई थी. देखो ये वाले जो पार्ट है, ये पार्ट हुआ, ये क्या है, ये इसका फेस है, ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया. और अब देखो यहाँ पे ये वाला भी जो पार्ट है, इसमें एक पीछे वाला और एक आगे वाला, इसमें भी एक पीछे का, एक ये वाला और ये वाला, ये दोनों फेसेस क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं. तो ये ए बी जो हमारा है क्या हो गया, ये एच हो गया. ये क्या होती है, उस दिन भी बताई थी ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना. और देखो ये वाले पॉइंट को देखो, ए पॉइंट को, ए पॉइंट पर एक ये एज, एक ये एज और एक ये एज, तीनों एज आके मिल गए तो ए क्या हो गया, वर्टिक्स हो गया. और इसका नाम एबीसीडी रख दो. तो एबीसीडी क्या होता है, एबीसीडी एक फेस है. आ रहा है आप समझ में अच्छे तरीके से. हाँ गुड. हाँ यही बात बता रही हूँ मैं इतनी देर से. देखो अब इसमें क्या क्या हुआ, इसमें एबीसीडी फेस हुआ. ये कैसा है, 2 डायमेंशनल फिगर है. वर्टिक्स, वर्टिक्स क्या होता है, एक पॉइंट होता है. ये ए हो गया. और एज हमेशा क्या होती है, एक हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है. यहाँ पर हमने जो एज लिया है वो एक एबी है. मैंने तुमसे पूछा था बच्चों कि बताओ क्या ये दोनों डायग्राम और ये तीनों जिसमें है बेटा वो हमारा है पॉलीहेड्रॉन. ऑल सॉलिड फिगर विच कंटेन्स फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस आर नोन एज पॉलीहेड्रॉन. और जिसमें ये नहीं है वो पॉलीहेड्रॉन नहीं है. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को. अब देखो ध्यान से, इसमें कहाँ का फेस है, कोई फेस नहीं है. एज भी कोई नहीं है क्योंकि फेसेस ही नहीं है, तो एज कहाँ से बनेगा बच्चों. और जब एज नहीं है तो वर्टिक्स भी नहीं है, है ना. यही सेम चीज इसमें भी है. ये घर वाला हमारा सिलेंडर है. तो जहां भी कर्व सरफेस आ जाता है बच्चों, जहां पे कर्व सरफेस आ जाता है वहां पे क्या होता है, वो पॉलीहेड्रॉन नहीं होता. ये आपके 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको वहां पे बताना होगा कि क्या, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस. If it is not a polyhedron, then why it is not polyhedron? Charvi has explained in the chat box, because it's not have faces, vertex and edges. So you have to give the explanation. Okay? अब आ जाओ, ये यहीं पर पॉलीहेड्रॉन हो गया. अब देखो पॉलीहेड्रॉन तो समझ में आ गया कि कौन से सॉलिड फिगर पॉलीहेड्रॉन होते हैं और कौन से नहीं होते. अब पॉलीहेड्रॉन भी जो होते हैं बेटा 2-3 तरह के होते हैं. जैसे आपकी बुक में जो पढ़ना है वो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन है. अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपने छोटी 7th क्लास में भी पढ़ा होगा. अगर यहाँ नहीं आपके बुक में दिया हुआ, अगर डायगोनल अंदर की तरफ मीट कर रहे हैं, कोई भी, जैसे सपोज करो एक हमने इस तरह का डायग्राम लिया, इसका डायगोनल अगर अंदर है तो ये कॉन्वेक्स फिगर होते हैं. और अगर डायगोनल बाहर की तरफ चला गया, जैसे आपने ऐसे ऐसे करके फिगर को बंद कर दिया तो इन दोनों को ज्वाइन किया तो देखो ये डायगोनल हो गए, तो इनको हम कॉनकेव कहते हैं.
तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स। तो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन क्या होंगे? कॉन्वेक्स वो होंगे जिनके डायगोनल जो होंगे इंटरनल होंगे, और जिनके भी डायगोनल एक्सटर्नल हो गए दीज आर नॉट कॉन्वेक्स। यहाँ पर बुक ने कॉन्वेक्स लिख रखा है बट दीज आर नोन एज कॉन्केव। क्लियर? अब आ जाओ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन? जैसे देखो मैं ये डायग्राम बनाई हूँ, तो इसके अपोजिट जो फेसेस है, हाँ, तो भी वो पॉलीहेड्रॉन नहीं होगा बेटा, चार भी तीनों होने चाहिए बेटा। अभी वो भी आपको बता रही हूँ। जैसे एक फिगर है, उसके अंदर फेस है, वर्टिक्स है और एज नहीं हो, तो क्या वो तो भी नहीं होगा बेटा वो, है ना। तो अब मैं यहाँ पर आपको रेगुलर पॉलीगॉन व्हाट इज द रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। अब आपको याद होगा कि जब भी हम लोग पॉलीगॉन पढ़ते थे, अगर उसके सारे बच्चों फेसेस इक्वल होते थे, तो वो रेगुलर होता था। और अगर लेंथ जो है हमारी उनकी इक्वल नहीं है तो वो रेगुलर नहीं होता। जैसे सपोज करो आपने एक पेंटागन बनाया, ठीक है ना, 1 2 हेक्सागोन है बच्चों, ठीक है ना, 6। अब अगर ये सब इक्वल है बच्चों, तो दिस इज नोन एज रेगुलर हेक्सागोन। और अगर ये इक्वल नहीं है, मतलब सबकी लेंथ डिफरेंट है, तो इसको हम इरेगुलर कहते हैं। तो अब यहाँ तो सॉलिड फिगर है, तो सारे तो इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन अगर इसके अपोजिट जो फेसेस है अगर वो इक्वल है तो दीज आर नोन एज रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। अब जैसे देखो एग्जांपल में आप देख लो, यहाँ पे ये हमारा क्यूबाइड हो गया, क्यूब हो गया, ये सब रेगुलर है क्योंकि इनके अपोजिट फेसेस जो होती है वो हमारा इक्वल होता है। लेकिन अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पर एक ये लेती हूँ, प्रिज्म ले लेती हूँ, या सपोज करो एक मैं प्रिज्म लेती हूँ, या आपको पता होगा ये इस तरह की डायग्राम होती है, इसे क्या कहते हैं, पिरामिड्स। तो पिरामिड जो होते हैं बेटा ये रेगुलर नहीं होते, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये पॉलीहेड्रॉन तो है क्योंकि नीचे एक सरफेस है और चारों सरफेस से ऊपर की तरह इस तरह से 4 सरफेसेस निकल के ऊपर की ओर आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये कॉन्सेप्ट लोगे कि क्या अपोजिट फेसेस है, तो नहीं है, ये पॉलीहेड्रॉन तो है बट दिस इज नॉट ए रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, ठीक है ना। अब आ जाओ आप एक्सरसाइज 10.3 पर। कैन ए polyhedron have for its faces 3 triangles? आप लोग पेज नंबर 166 निकाल लो बच्चों, पेज नंबर 166। ये ओरल थोड़ा सा है तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 3 ट्रायंगल्स, अगर आप 3 ट्रायंगल्स लोगे बच्चों, सपोज करो, देखो जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया, इसको ऐसे समझो, एक ट्रायंगल ले ली। अब सॉलिड फिगर बना रहे हैं बच्चों, हमेशा याद रखना, जैसे एक हमारा सपोज करो नीचे एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर से हम 4 सरफेसेस, 4 उसके हो गए साइड, उन चारों साइड पर हमने इस तरह से 4 ट्रायंगल को ऊपर की तरफ लेकर चले गए और चारों एक जगह पे जो ऐड हो गए तो वो हमारा वर्टिक्स हो गया। लेकिन अगर हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चों, तो ऊपर की तरफ भी हमको इसको कंबाइन करने के लिए 3 ट्रायंगल की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 इसके साइड्स हैं। तो तीनों साइड पर सपोज करो आप स्क्वायर ले लो, फिर उसके ऊपर भी एक ट्रायंगल लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन 3 ट्रायंगल जब भी आप लोगे तो कभी भी वो एक पॉलीहेड्रॉन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसके सरफेसेस जो होंगे, इसके जो हमारे इसके जो फेसेस होंगे, ये फेसेस मिलकर कभी भी एड्स नहीं बना पाएंगे, और जो ये एड्स बनेंगे भी बेटा तो वो एड्स वर्टिक्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि तीनों ज्वाइंट नहीं हो पाएंगे, मिनिमम 4 चाहिए। अगर मेरे पास 4 ट्रायंगल्स होता तो एक ट्रायंगल को इसके ऊपर, एक ट्रायंगल को इसके ऊपर और एक ट्रायंगल को इसके ऊपर,
सबके ऊपर एक एक ट्रायंगल रख लेती और सबके जो हमारा जो टॉप था उसको ज्वाइन कर कर एक वर्टेक्स बना देती, तो हमारा एक पॉलीहेड्रॉन बन जाता। तो पहले का आंसर क्या हो गया, नो हो गया, है ना। सेकेंड में है बेटा 4 ट्रायंगल्स, वो तो अभी ही डिफाइन कर दी। अगर 4 ट्रायंगल है मेरे पास तो एक ट्रायंगल को बेस में ले लो, 3 ट्रायंगल को उसके साइड्स पर रखो और तीनों ट्रायंगल का जो टॉप है बेटा उसको एक जगह पर ज्वाइन करके एक वर्टेक्स बना लो, तो बन जाएगा आपका पॉलीहेड्रॉन। ए स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स, है ना। अब देखो एक ए स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स, अब जैसे सपोज करो हमने एक स्क्वायर ले लिया बच्चों, अब ये चारों पर एक एक ट्रायंगल हमने रखा, देखो इस तरह से, और ये जो चारों ट्रायंगल है इनको उठा के ऊपर, इनका जो ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है इनको उठाकर ऊपर एक जगह ज्वाइन करके हमने वर्टेक्स बना दिया, तो बन गया पॉलीहेड्रॉन। आ गया ना समझ में। तो हम एक स्क्वायर और 4 ट्रायंगल से भी पॉलीहेड्रॉन बना सकते हैं, सिर्फ 4 ट्रायंगल से भी पॉलीहेड्रॉन बना सकते हैं। उसके लिए एक ट्रायंगल को बेस में रख लेंगे और 3 ट्रायंगल को ऊपर एक जगह ज्वाइन कर देंगे, लेकिन तीन ट्रायंगल से हम कभी भी पॉलीहेड्रॉन नहीं बना सकते। क्लियर। इज इट पॉसिबल, सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहेड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। अब देखो एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस से क्या आप एक पॉलीहेड्रॉन बना सकते हो। तो अब सोचो, फेसेस की बात हो रही है, फेसेस की बात ये हो रही है बच्चों, जैसे इस तरह से हमने एक फेस लिया, 2 फेस लिया, 3, बस कंडीशन ये है बच्चों कि कितने भी आप फेस ले लो। अभी जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और 5, मतलब हमने जो बेस पर जो भी चीज को रख रखा है, अगर सपोज करो बेस पर हमने ट्रायंगल को रख दिया है, तो ट्रायंगल को रख दिया है तो हमें एक 3 और चाहिए ऊपर, तभी एक पॉलीहेड्रॉन बनेगा। तो यहाँ यही रीजन है कि जो इनके फेसेस होने चाहिए या तो वो कम से कम मिनिमम 4 हो, जो ट्रायंगल का केस समझाई, या तो जैसे 4 ट्रायंगल मिलकर एक पॉलीहेड्रॉन बन गए, या 4 से ज्यादा हो। सो सेकेंड आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहेड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। तो यस, we can make a polyhedron with minimum number of possible faces is 4 or more than 4. Clear? थर्ड, अब इनमें प्रिज्म कौन सा है बच्चों, बताओ। तुम्हें तो पता है क्या 1 प्रिज्म है, नेलेक प्रिज्म होता है, नो। ये हमारा अनशार्पेंड पेंसिल्स है बेटा, तो ये अनशार्पेंड पेंसिल भी एक प्रिज्म होता है। देखो अभी तक हम लोग, शायद तुम लोग ये सोचते होगे कि प्रिज्म का मतलब जो होता है वो जो हम ट्रायंगुलर प्रिज्म देखते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है, उसके एक नीचे ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल ऊपर होता है, और जो इसकी तीनों सरफेसेस हो गई बेटा ट्रायंगल की, वो तीनों एक दूसरे में कंबाइंड होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ट्रायंगुलर के साथ साथ ये जैसे हम 4 फेसेस के भी हम प्रिज्म ले सकते हैं, नीचे भी 4 फेसेस, ऊपर भी 4 फेसेस। इसी तरह से यहाँ पर जो हमारी अनशार्पेंड पेंसिल है, सपोज करो इसमें देखो बहुत सारे फेसेस दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन चूंकि अभी मैंने इसको शार्पन नहीं किया है तो इसके आगे कोनिकल पार्ट नहीं बना है, तो ये पेंसिल भी एक प्रिज्म के फॉर्म में है। और तीसरा तो एक टेबल बेड है बच्चों, तो टेबल बेड क्या है प्रिज्म नहीं है, क्योंकि इसका नीचे और ऊपर का सरफेसेस इक्वल नहीं है। अब फोर्थ सरफेस जो डायग्राम है बॉक्स, वो भी एक प्रिज्म है, क्योंकि नीचे भी स्क्वायर है और ऊपर भी एक स्क्वायर है। मतलब प्रिज्म का बेटा एक चीज कॉन्सेप्ट समझ लेना कि प्रिज्म का बेस और टॉप सेम होता है। प्रिज्म जो होती है, प्रिज्म का टॉप और बेस सेम होता है, मतलब दोनों का जो ज्योमेट्रिकल शेप होना चाहिए वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। हम जो स्कूल में प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं 11th 12th में, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म लेते हैं, नीचे बेस भी ट्रायंगल होता है और ऊपर भी होता है। यहाँ पर जो बॉक्स है आपका वो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, और जो पेंसिल है बच्चों वो पेंटागोनल प्रिज्म हो गई। कॉन्सेप्ट क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलिंडर्स अलाइक। प्रिज्म और सिलेंडर लाइक कब है, अब सपोज करो प्रिज्म है और एक सिलेंडर है ना। सिलेंडर जो होता है बेटा, सिलेंडर का जो होता है बेस वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो अगर हम उसके अगर उसका जो सर्कल है उसका जो साइड्स है
इसको हम बड़ा कर दें सर्कल से तो वो किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो जो हमारा सिलेंडर होता है उसका भी बॉटम, अपर और बॉटम दोनों सेम होते हैं। तो आप अगर उसको बड़ा कर दो, कर्व से उसको हटा दो, तो क्या होगा, वो तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो भी एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में बदल जाएगा, है ना। सेकंड कह रहा है हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन एलाइक। अब पिरामिड पे आ जाओ और कोन पे फिर वही सेम है बेटा। पिरामिड जो नीचे होता है वो सर्कुलर कर्व्ड नहीं होता, लेकिन हमारा जो कोन होता है, देखो ऐसे कोन होता है ना, ये रहा हमारा कोन। तो फिर वही बात है, अगर हम इसका जो बेस है, अगर इसके बेस को लार्जर कर दें तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पिरामिड में चेंज हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि क्या स्क्वायर प्रिज्म सेम एज ए क्यूब, स्क्वायर प्रिज्म और स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब, क्यूब नहीं होते बेटा, क्यूबाइड जो होता है ना वो सेम होगा। अब है वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दीज सॉलिड्स। ओके, तो अब देखो 6 से मैं आपको बताती हूँ, 6 का जो है ना हम काउंट करते हैं एक एक करके इसमें। गुड ऋषभ, आ ही नहीं रहा था बेटा, चैट बॉक्स अब आया है। हाँ सही आपने लिखा है, बॉटम और जो टॉप होते हैं सेम होते हैं। ओके प्राची एंड लक्ष्य, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें ज्यादा कुछ इस चैप्टर में करने को नहीं है बच्चों, इजी सा चैप्टर है। इसमें जो बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं ना इन्हीं से आते हैं। और एक वो वाला जो मैंने आपको चेन में डायग्राम को जो ओपन करके बताया था ना, आपको वो दोनों लिखने को आ जाएंगे कि आप क्यूबाइड का 2 फॉर्मेट लिखें जिनको हम ज्वाइन करके क्यूबाइड बना सकते हैं या क्यूब बना सकते हैं। अब देखो यूलर्स फॉर्मूला 6 का फर्स्ट है। अब आपको इसमें काउंट करना है, जैसे सपोज करो पहला वाला जो पार्ट है बच्चों, इसमें फेसेस कितने हैं, काउंट करो और तुम लोग बताओ कितने दिख रहे हैं। 1 2 3 तो आगे दिख रहे हैं बेटा, और 2 पीछे वाले नहीं दिख रहे हैं, तो फेस कितने हो गए, 5। ठीक है ना। अब इसमें देखो एड्स कितने हैं, अब इसमें कितने हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें 1, या अगर चाहो तो इसको तुम निकाल सकते हो। वर्टिसेस नहीं काउंट हो रहा है, वर्टिसेस देखो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 1 2 काउंट करो कितने हैं यहाँ पे। तो अगर सपोज करो ये हमारा 10 है, ठीक है ना, तो हम निकाल लें a प्लस बी, कितना आ गया 10 + 5 15, तो नहीं भी काउंट कर पा रहे हैं तो हमें चाहिए e + 2, तो e + 2 मतलब क्या होगा 13 + 2, तब ये हो जाएगा 15 के इक्वल। तो ये कितना आ गया बच्चों, 13 आ गया। हम ऐसे निकाल सकते हैं ना, क्योंकि इसका पीछे का सरफेस जो है वो हमें नहीं दिख रहा है। इसी तरह से सेकंड वाले में देखो आप सारे काउंट कर पाओगे। सेकंड आ जाओ, सबसे पहले सेकंड में फेसेस कितने हैं, काउंट करो और बताओ मुझे काउंट करके। नाइन है, ठीक है। अब बताओ मुझे इसमें दिख रहा है आपको, इसमें एजेस कितने हैं बताओ काउंट करके। सब दिख रहा है, देखो डॉटेड लाइन से बना रखा है।
फास्ट चिल्ड्रन, 9 तो मैं लिख चुकी हूँ। मुझे एज बताओ कितने हैं। और फिर वर्टिक्स बताओ, वर्टिक्स बताओ कितने हैं। गुड प्राची, वर्टिक्स 9 है, ठीक है ना। अब देखो, जो जिसपे कंफ्यूजन आपको हो, अब देखो आपके पास एफ और बी आ गया, तो ये क्या है, 9 + 9 18, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, 16। ऐसे ये 16 आप काउंट कर सकते हो। देखो कैसे 16 काउंट कर सकते हो, 4 बीच में है और 4 नीचे है, 4 और 4 8, 4 उसके जैसे वो डोम टाइप का बना हुआ है ना, तो 4 बीच में है 12, और फिर जो ऐसे वाला 4 पार्ट है वो 4, तो 4 बार 4 मिलकर कितने हो गए, 16। और नहीं भी आए बेटा एक, तो इसलिए ये फॉर्मूला सिखाया गया है आपको कि आप इस फॉर्मूला की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे इसी तरह से वापस अब 1 पर आ जाए हम लोग, तो 1 पे देखो, 1 के एज दिख रहे हैं आपको। 1 में कितने सरफेसेस है, पहले देखो कितना पार्ट ऊपर और नीचे है, तो 5 है ना, 5 है, तो 5 ऊपर और 5 नीचे 10, और फिर 5 बीच वाले भी, तो कितने हो गए 15, तो हमारा देखो निकल गया है ना। तो इस तरह से आप इसको कोई भी दो जो आपको मालूम हो जाए, उन दो की हेल्प से आप तीसरे को आराम से फाइंड कर सकते हो। अब 7th क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जैसे अगर आप 7th निकालते हो, क्वेश्चन 7, तो 7th में मिला हुआ है, जैसे फेसेस में क्वेश्चन मार्क है, वर्टिसेस जो है 6 है, और 8 जो है वो 12 है ना। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, देखो F + V = E + 2, तो F तो F ही रहने दो, V की जगह 6 डाल दो, 12 + 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऊपर लिखती हूँ, यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, F + V = E + 2, so F + 6 = 12 + 2, so F = 14 - 6, and this is 8. हाँ गुड ऋषभ, तो ये आपका आंसर हो गया है ना। इसी तरह से निकाल के बताओ मुझे सेकंड और थर्ड आप लोग, फिर मैं आपको 8 क्वेश्चन बताऊंगी। पहले सेकंड और थर्ड बताओ मुझे निकाल के क्या आएगा। के फर्स्ट में बेटा फेसेज 7 है, और एक ऊपर एक नीचे, और 1 2 3 4 5 7। और अब हम देखें इसके वर्टिसेस कितने हैं, एज कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, और ये 15, ये आ गया 15, ठीक है ना। तो वर्टिसेस कितने हो जाएंगे इसके वर्टिसेस कितने हो जाएंगे, F + V = E + 2, तो F की जगह 7 + V = 15 + 2, so V = 17 - 7, and this is 12, ठीक है ना। देखो अब निकल गया सही से। ये बेटा 6 का फर्स्ट था। देखो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, 5 सरफेसेस चारों ओर से, और एक सरफेस फेस ऊपर और एक फेस नीचे, तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। और इसमें जो हम एड्स की बात कर रहे हैं, तो
5 साइड में, 5 ऊपर और 5 नीचे, तो 15। तो हमारा ये देखो 10 हो गया, करेक्ट था। बट इसको यहाँ पे करेक्शन, यहाँ पे 7 लिखना था 5 की जगह पे, है ना। गुड चिल्ड्रेन, हो गया आपके, ये इजी है ना। वर्टिसेस भी निकल गए और एज भी निकल गए, इजी है। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन, कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस, 20 एज एंड 15 वर्टिसेस। कह रहा है कि क्या आप एक पॉलीहेड्रॉन बना सकते हो, किससे? एफ जो है 10 और E इक्वल टू 20 और V इज इक्वल टू 15। अब निकालो फ्रॉम यूलर्स फॉर्मूला, F प्लस V इज इक्वल टू 10 प्लस 15 and this is equal to 25 and E plus 2 is equal to 20 plus 2, 22. Here F plus V is not equal to E plus 2. Therefore, no आंसर में आ गया, no any polyhedron have not, जो क्वेश्चन है, 10 faces, 20 edges and 15 vertices. This is the answer. ऋषभ, ये कौन से क्वेश्चन के बारे में आपने लिखा है बेटा? V इज इक्वल टू E प्लस 2। ओके, ठीक है। कंप्लीट चिल्ड्रन, किसी को कोई दिक्कत नहीं इसमें? अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें, मेंसुरेशन। क्यों नो मैम, क्यों डिवेन, वाई नो मैम? इसी का वाई नो? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें हम लोग, मेंसुरेशन। थोड़ी सी बेसिक बताएं आपको उसके बारे में। बेटा क्वेश्चन 6 अभी दोबारा बना दी ना? कौन पूछ रहा है 6? देखो बेटा 6 को ना, 6 में डायग्राम मिला हुआ है और डायग्राम 4 भी आप पूछ रहे हो ना, 6 में डायग्राम मिला हुआ है और आपको ई, वी और एफ उसमें से काउंट करके लिख लेना है और फिर प्रूफ करके दिखा देना है। बना ही हुआ है, देखो अभी भी यहाँ पे। जैसे सपोज करो आप फर्स्ट वाला डायग्राम ले रहे हो, 6 का फर्स्ट, तो कितने इसमें फेसेस कितने हैं? 5 है बेटा। देखो किस पे बना हुआ है, ये एक पेंटागन पे बना हुआ है। तो एक सरफेस, एक फेस नीचे, एक फेस ऊपर और 5 फेस चारों ओर से। तो कितने फेस हो गए? ये 6 का फर्स्ट है, फेस कितने हो गए? 7 हो गया। अब देखो, अब आ जाओ, 2 चीजें और चाहिए, एक तो वर्टिक्स चाहिए और एक एजेस चाहिए। तो आप इसमें अब दूसरा में आप निकालो इसमें कितने वर्टिक्स हैं। तो वर्टिक्स के पहले एजेस निकाल लो कितने। तो एजेस क्या होते हैं? जहां पे 2 सरफेस मिलते हैं। तो देखो ऊपर में 5 सरफेस हो गया, नीचे भी 5 सरफेस हो गया 10 और साइड में भी हो गया 5। तो टोटल कितने हो गए? 15। तो एड्स कितने हो गए बच्चों? 15। अब अगर आप भी निकाल सकते हो तो भी ठीक है, नहीं निकाल सकते हो तो यूलर्स के फॉर्मूला से निकाल के दिखा दो। अब तुम्हारा मालूम है ना कितना आएगा? F प्लस V जो होता है वो E प्लस 2 के इक्वल होता है ना।
तो अब यहाँ पे e+2 करोगे आप तो कितना हो जाएगा 17, क्योंकि तुमने e निकाल रखा है 15, तो 15+2 क्या आ गया 17, और 7 ऑलरेडी आपके पास है, तो वर्टिक्स कितने आ गए 10 आ गए। और आप इसको यूलर के फॉर्मूला से प्रूफ करके दिखा दो। पहले काउंट कर लो, अब वर्टिक्स काउंट करना भी बता देती हूँ। देखो ऊपर में 5 है और नीचे में भी 5 है, 5 और 5 मिलकर 10 हो गए। दूसरा डायग्राम देखो इसी तरह से बना हुआ है। ये क्या है, ये एक नीचे में क्यूबाइड है और क्यूबाइड के ऊपर में ये कोन है, मतलब ये एक स्क्वायर पिरामिड है ना। तो इसमें भी तुम काउंट कर लो, अभी तुरंत काउंट करके सिखाई। 4 सरफेसेस साइड से, एक बेस में 5, 4 और 1 5 और 4 ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन में भी ये तो क्या बना हुआ तो है, फेस कितने हो गए 9। अब इसको लिख दो यूजिंग यूलर्स, या मत लिखो हेंस वेरीफाइड लिख देना। पहले लिख लो f+b, 9 + 9 18, इसको फर्स्ट कर दो। फिर लिखो e+2, लिखो 16 + 2 18, सेकेंड कर दो। दिख रहा है? और अब लिख दो फ्रॉम, एक सेकेंड, दिख रहा है ना? अब लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, f+b = e+2, हेंस यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाइड। आ गया समझ में? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी भी दिक्कत है चार्वी? गिव मी फास्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स दो चैट बॉक्स में मुझे। चार्वी आपने पूछा 6 का 2 वापस पूरा बना दी, देखो ये रहा। चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वही कर लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं। अब तो बोर्ड आ गया है हमारे पास, है ना? ये HB क्या लिखी है चार्वी? चैप्टर 4 निकाल लो, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पहले कर लेते हैं। अब ये नोमैन क्या लिखी बेटा? बना डायग्राम मिला हुआ है, डायग्राम में काउंट कर लो F कितने हैं, E कितने हैं और V कितने हैं, ठीक है? उसके बाद एक बार f+v निकाल लो, दूसरे बार e+2 निकाल लो, दोनों इक्वल हो गए, हेंस यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाइड। अब इसका क्या, अब यहाँ देखो बना हुआ है, तुम इसे नोट डाउन कर लो, है ना? बच्चों चैप्टर 4 करोगे पहले या मेंसुरेशन करोगे? आप ही बताओ, जो करोगे वही कर लेंगे हम पहले, कोई दिक्कत नहीं है। 4 करना चाहते हो? अच्छा है। कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो? कंस्ट्रक्शन बहुत इजी होते हैं, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए बस। तो हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स के साथ बैठना, मैं यहाँ पे बोर्ड पर बनाती जाऊंगी और मेरे साथ साथ आप भी बनाते जाना, ओके? अब आज तो जो इतनी बार इस प्रॉब्लम को हमने रिपीट किया कि हमारा टाइम ही ओवर हो गया। ज्योमेट्री बॉक्स एक पेंसिल कंपास में लगा के और एक पेंसिल अलग से, 2 लेकर आना, है ना? और फिर एक आपके पास स्केल होना चाहिए जिसपे अच्छे से आप देख सके। नहीं बेटा, ज्योमेट्री ये तो जो है ना, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है ना, वो तो आप प्लेन वाली कॉपी में बनाना। मैथ्स की कॉपी लिए हो आप लोग या नहीं है आपके पास? ठीक है ना चिल्ड्रन? नेक्स्ट क्लास है ना, तो आप लेकर उसी कॉपी पे बनाना जो प्लेन वाला पेज होता है, ओके चिल्ड्रन?